हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर और मैं आपको LLB 3 ईयर सेकेंड सेमेस्टर में कॉन्ट्रैक्ट का पेपर पढ़ा रही हूँ। आप पढ़वाएं यूनिट 3 लेक्चर 1। तो चलिए पहले यूनिट 3 का सिलेबस चेक करते हैं कि यूनिट 3 में सिलेबस क्या है कॉन्ट्रैक्ट के। तो डेफिनेशन ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल, एसेंशियल ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी, क्रिएशन ऑफ एजेंसी by agreement, rectification and law, relation of principal agent, sub-agent and subsequent agent, substituted agent, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। तो ये सिलेबस हो गया यूनिट 3 का। इसका मतलब एजेंसी का पूरा सिलेबस है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग: क्रिएशन ऑफ एजेंसी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एजेंसी, एलिमेंट्स ऑफ एजेंसी, राइट्स ऑफ एन एजेंसी। चलिए देखिए ये क्वेश्चन कब कब आया है, क्रिएशन का, काइंड्स का, एलिमेंट्स का और राइट्स का। जब अनसॉल्व देखते हैं 3rd यूनिट में, आप देखेंगे कि ये हर साल क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। नेचर ऑफ एजेंसी लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट में आया है। राइट्स ऑफ एजेंट क्वेश्चन नंबर लॉन्ग के 4th में है, डी पॉइंट में है। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी लॉन्ग क्वेश्चन के 2 नंबर में है। और सब्स्टिट्यूट एजेंट क्वेश्चन नंबर 3 में है। तो ये हर साल क्वेश्चन लगभग आता है। लॉन्ग 2014 में लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 के रूप में है। डिफाइन द टर्म एजेंट, डिस्कस द मोड बाय विच एजेंसी हैज़ बिन क्रिएटेड। अभिकर्षा शब्द को परिभाषित कीजिए। अभिकरण का सर्जन किस प्रकार किया जा सकता है। और आगे देखें 2015 में फिर शॉर्ट क्वेश्चन में आया है, हाउ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज क्रिएटेड। अभिकरण संविदा का सृजन किस प्रकार होता है। 2016 में क्वेश्चन नंबर 1 के रूप में है, रेक्टिफिकेशन इज टेटा अमाउंट टू प्रायर अथॉरिटी, कमेंट एंड एक्सप्लेन द रिक्विजिशन ऑफ ए वैलिड रेक्टिफिकेशन। तो ये हर साल आप देखेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आता है। 2017 में फिर आया है कि हाउ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज क्रिएटेड, आल्सो डिस्कस द मोड बाय विच एन एजेंसी कैन बी टर्मिनेटेड। तो हर साल लगभग क्वेश्चन लॉन्ग के रूप में, शॉर्ट में, सब में आ रहा है। व्हाट आर द मोड फॉर द टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, एक एजेंसी के समापन के तरीके क्या होंगे। 2018 में ही क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में लॉन्ग में है। 2019 में फिर आप देखेंगे कि क्वेश्चन ये आ रहा है क्रिएशन ऑफ एजेंसी के रूप में। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर यूनिट 3 का क्वेश्चन नंबर 1, लेक्चर नंबर 1। The relationship of agency arise whenever one person called the agent has authority to act on behalf of another called the principal and consent so to act. The relationship has it in a contract. The relationship of principal and agent may be created into in any of the following ways: by express appointment or express agency, by the conduct or situation of the parties or agency by estoppel, by necessity of the cases or agency by necessity. Express agency: a person who is competent to contract and who is of sound mind may appoint an agent. Such an appointed may be expressed in writing or in may be oral. When where a principal authorizes his brother-in-law manage his property in his absence, it is a express authority. Under the Indian law, an agent cannot only be appointed by a person himself by the authority authorized by law to make such appointment. Thus, a person appointed under the provision as a statute for the protection of interest of quarreling co-owner of a third person is agent. Implied agency: an agency that is created by the express words of the principal is called an implied agency. Implied agency may arise from the contract, situation or relationship of parties whenever a person places another in a situation from which that other is understood to represent or to act from him, he become an implied agent. The principal is thereafter stopped from denying the agent authority. If a person authorizes another to assume the apparent right of disposing of property in ordinary courses of trade, it must be presumed that the apparent authority is the real authority. He may bind the principal within the time limit of authority which has been apparent clause by the principal, and there could be no safety in commercial transactions. If he could not, where permission is granted to person for a particular purpose, that purpose is an agent for that limited purpose so as to create ability for result of act during that
परमिशन। तो अब आप देखेंगे कि एजेंसी बाय नेसेसिटीज़, ये भी क्वेश्चन शॉर्ट नोट में आया है। वी आर ओइंग टू एमरजेंसी ऑफ द सिचुएशन एंड एजेंट एज टू एज्यूम स्पेशल पावर द एक्शन इन सच केस शैल बी बाइंडिंग ऑन द प्रिंसिपल एंड दिस इज नोन एज एजेंसी बाय नेसेसिटी। द प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी ऑफ नेसेसिटी वॉज फर्स्ट अप्लाइड टू केस ऑफ marine advantage where under the unforeseen emergencies the master got the power to sell the goods in order to save their value but now it has become a principle of general application। तो यहाँ पर आप एजेंट के बारे में देख रहे हैं कि पहली चीज़ कि एजेंट कौन होता है, एजेंट क्या है। तो सबसे पहली चीज़ क्वेश्चन को डिस्क्राइब करें कि एजेंट कौन है और एजेंसी कैसे बनती है, क्योंकि यही एक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एजेंसी कैसे बन रही है वो हम आपको सबसे पहले बताएंगे। देखिए प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशन को एजेंसी कहते हैं। प्रिंसिपल का मतलब होता है मालिक और एजेंट का मतलब होता है वो व्यक्ति जो प्रिंसिपल का काम कर रहा है। तो कह सकते हैं कि एजेंट वो व्यक्ति है जो किसी पर्सन की ओर से थर्ड पर्सन के कामों को करने के लिए ऑथराइज किया जा सकता है। अब वो किसका काम करता है, अपने मालिक को रिप्रेजेंट करता है, तो मालिक का काम करता है। अब एजेंसी को बनाने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, एजेंसी कैसे बनती है, तो यहाँ क्रिएशन ऑफ एजेंसी को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। एक्सप्रेस एजेंसी, इम्प्लाइड एजेंसी, एजेंसी बाय नेसेसिटी। तो ये 3 तरीके से बन रही हैं। एक्सप्रेस का मतलब होता है लिखित, इम्प्लाइड का मतलब होता है आचरण द्वारा और नेसेसिटी का मतलब होता है आवश्यकता के अनुसार। तो सबसे पहले एक्सप्रेस एजेंसी, मैंने आपको बताया कि कोई भी संविदा सक्षम व्यक्ति अपने लिए एजेंट अपॉइंट कर सकता है। ये अपॉइंटमेंट क्या हो सकता है, एक्सप्रेस एजेंसी में रिटर्न भी हो सकता है और शब्दों द्वारा भी हो सकता है। तो इंग्लिश लॉ कहता है कि मालिक की इच्छा के बिना कोई भी व्यक्ति उसका एजेंट नहीं हो सकता है। मालिक या तो बोले या लिख कर दे तो तभी एक्सप्रेस एजेंसी बनेगी। तो यहाँ पर देखा जाता है कि भाई अगर कोई मालिक है तो मालिक क्या करेगा, जब भी उसको एजेंट अपॉइंट करना होगा तो वो रिटर्न में भी दे देगा। इम्प्लाइड एजेंसी का मतलब होता है कि कभी कभी जो एजेंसी होती है पार्टीज़ के कंडक्ट से, आचरण से, संबंधों से उत्पन्न होती है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या करे कि लगे कि उसके लिए वो काम कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लगेगा कि सेकेंड पर्सन क्या है, उसका एजेंट है। तो ऐसा एजेंट, ऐसी एजेंसी क्या होगी, इम्प्लाइड एजेंसी कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए कि हम क्या करें कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल दें कि एक लेडी ने अपनी कार अपने बेटे को दे दी और वो क्या करती थी कि वो पेट्रोल और मरम्मत रिपेयर खुद कराती थी, लेकिन लड़के ने क्या किया कि नेग्लिजेंस की और एक्सीडेंट हो गया। तो जो उसकी वाइफ थी उसके साथ वो क्या हो गई, जख्मी हो गई। तो यहाँ पर लिखा गया कि लड़का जो है वो माँ का एजेंट है और माँ उसके फॉल्ट के लिए लायबल है। तो यहाँ पे इम्प्लाइड एजेंसी पार्टीज़ के बिहेवियर से पता चल रहा था। और एजेंसी बाय नेसेसिटी, आवश्यकता के अनुसार एजेंसी बनती है। जब हमें लगता है कि किसी चीज़ की आवश्यकता है तो हम क्या करते हैं, एजेंसी को क्रिएट कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में एजेंसी क्या होती है, पता चल जाता है सामने वाले व्यक्ति को कि हाँ एजेंसी आवश्यकता के लिए ही बनाई गई है। अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ एजेंट्स, तो आपको एजेंट्स के काइंड्स बता दें। ऑक्शनर, फैक्टर, ब्रोकर, स्टेट एजेंट, डेल क्रेडिटर एजेंट। तो पहला एजेंट है, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ एजेंट डिपेंडिंग ऑन द अथॉरिटी गिवन टू देम टू एक्ट ऑन प्रिंसिपल्स बिहाफ। तो बहुत सारे एजेंट होते हैं जो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम करते हैं। पहला ऑक्शनर। एन ऑक्शनर इज एन एजेंट whose business is to sell goods or other property by auction, by open sale. An auctioneer has implies authority to sign contract of both the buyer and seller. The authority vested in him to sell the goods only and not to give warranties on behalf of the seller unless expressly authorized in that behalf. He is a mercantile agent within the meaning of the section 2 subclause 9 of the Sales of Good Act। तो देखिए ऑक्शनर का वो एजेंट होता है जो अपने बिजनेस के दौरान चीज़ों को ख़रीदता व बेचता है। अब चीज़ों को जो खरीदने के दौरान बेच और ख़रीद रहा है वो ऑक्शनर है। अब ऑक्शनर का मतलब हिंदी में अगर देखा जाए तो नीलाम करता। उसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है कि किसी चीज़ में कोई गारंटी है। वो क्या होता है, एक तरीके का व्यावसायिक रूप से काम करने के लिए एक एजेंट होता है। जैसा कि एजेंट की परिभाषा आपको, ऑक्शनर की परिभाषा है जैसे आपको सेल्स ऑफ गुड एक्ट सेक्शन 2 सब क्लॉज 9 में बताई गई है। फैक्टर भी एक तरीके का मर्केंटाइल एजेंट होता है जो क्या करता है, बिजनेस के पर्पज़ से चीज़ों को अपने पोजीशन में लेता है और चीज़ों को बेचता है और उसके बाद पेमेंट होता है वो पेमेंट ले लेता है और उसको कोई भी उसका मतलब
वो प्रिंसिपल के लिए काम करता है। फैक्टर का मतलब भी एजेंट है। ब्रोकर का मतलब दलाल। ए ब्रोकर इज एजेंट who has authority to negotiate the sales or purchase of good on behalf of his principal with a third person. Unlike a factor, he himself has no possession of the goods. A broker is authorized in sell goods on reasonable credit to receive payment of the price if he does not disclose the name of his principals and to act on the uses and regulation of the market in which the deal except where such uses or regulation are unlawful or unreasonable. He make the two parties enter into a contract and get his commission whenever any transaction materialize through his affords. देखिए, ब्रोकर एक तरीके का दलाल होता है। वो भी क्या करता है, निगोशिएशन करता है, चीज़ों को बेचता है और कमीशन लेता है। जब तक उसका कमीशन नहीं मिलेगा वो क्या करेगा, प्रिंसिपल के सामान पे कब्जा बनाए रखेगा। जिस दिन कमीशन मिल जाएगा वो उसको चीज़ों को वापस कर देना चाहिए। स्टेट एजेंट एंड स्टेट एजेंट इज अपॉइंटेड बाय द प्रिंसिपल टू फाइंड परचेज फॉर प्रॉपर्टी. He only negotiates a sale and find purchase and does not bind himself to as to purchaser. Where he duly negotiates as a sale, he is entitled to commission. Where the transaction goes through a not on the principal sale the property at lowest price. भाई प्रॉपर्टी को बेचने के लिए ऑथराइज करते हैं प्रिंसिपल इसे। ये क्या करता है, खुद प्रॉपर्टी नहीं खरीदता है बल्कि निगोशिएट करता है दूसरे थर्ड पर्सन से ताकि प्रॉपर्टी को बेच सके। और कभी भी ये प्रॉपर्टी को लोएस्ट प्राइस पे नहीं बेचेगा, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू होगी उसी प्राइस पे ये बेचेगा। डेल क्रेडिटर एजेंट generally the function of agent is over after a contract is entered into between his principals and a third person and he is not answerable to his principal for the failure of the third person to perform the contract. A deal creditor agent constitute an exception to this rule. He is a mercantile agent who was the payment of some extra commission known as del creditor commission guaranteed the performance of the contract by a third person. In such a case, the third person, for instance, failed to pay for the goods supplied to him, the principal can bring an action against the del creditor agent for the same. The liability for the del creditor agent, like that is surety, is secondary, and the same arise if the third person fails to pay the principal what is due under the contract. A del creditor agent incur only a secondary liability towards the principal. His legal position is partly that of an insurer and partly that of surety for the party with whom he deals. To the extent of any default by reason of insolvency or something equivalent, his liability does not go to the extent of market making him responsible to the principal. Where there can be profit by reason of any strategy in the market, a del creditor agent is however not liable to the buyer for any default on the part of his principals, nor is to be liable for any disputes between the principal and the buyer relating to the contract or sum of the due. देखिए, डेल क्रेडिटर एजेंट एक तरीके का ये भी एक एजेंट होता है जो अपने मालिक से एक्स्ट्रा कमीशन लेकर काम करता है। ये क्या काम करता है, एक्स्ट्रा कमीशन लेता है। और ये क्या करेगा, जो भी चीज़ें थर्ड पर्सन के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बल्कि इसकी जो लायबिलिटी होती है वो श्योरिटी की तरह होती है। श्योरिटी कौन है, श्योरिटी वो व्यक्ति होता है जो गारंटी लेता है कि अगर ये सामान ख़राब निकला तो मैं आपको पैसे दूंगा, मैं गारंटी लेता हूँ। तो ये एक तरीके की गारंटी लेता है, इसीलिए इसकी लायबिलिटी ज़्यादा मानी जाती है और ये एक्स्ट्रा कमीशन भी लेता है। ये भी एक तरीके का एजेंट का टाइप होता है। एलिमेंट्स ऑफ एजेंसी, एजेंसी कैसे बनेगी। फीचर्स ऑफ एजेंसी, कॉम्पिटेंसी ऑफ प्रिंसिपल्स, कॉम्पिटेंस ऑफ एजेंट, कंसिडरेशन एजेंट एंड अदर रिलेशनशिप केसेस आपको पढ़ाएंगे राम गोपाल एंड सन्स, हैदराबाद गवर्नमेंट एजेंसी एंड बेलमेंट। तो चलिए अब आपको फीचर्स पढ़ाना शुरू करते हैं कि फीचर्स क्या होते हैं एक एजेंट के। एन एजेंट इज़ ए पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर द अनदर टू रिप्रेजेंट अनदर टू डेलीगेंस with third person, and the third person with such act is done or who is so represented is called the principal. In an agency, one person principal employ another person agent to represent him or to act on the behalf of in dealing with a third person. Employer another person agent to represent act to behalf in dealing with a third person. The agent is only a connecting link between the principal and the third person. Contract entered into through an agent, an obligation arising from act done by an agent may be enforced in the same manner and will the same legal result if the contract has been entered into and the act done by the principal person. देखिए, अब एजेंट वह व्यक्ति होता है जो किसी और के लिए कोई कार्य करने के लिए थर्ड पर्सन से क्या किया जाता है, इसको अपॉइंट किया जाता है। वो व्यक्ति जिसके लिए काम करता है और जिसका ये रिप्रेजेंटेटिव करता है वो प्रिंसिपल कहलाता है। तो इसका मतलब, इसकी जो डेफिनेशन है बहुत लार्ज है।
तो यहाँ पर एजेंसी का समरी ये है कि एक मालिक अपने एजेंट को पावर दे देता है कि वह प्रिंसिपल के बिहाफ पर, मालिक के बिहाफ पर अदर व्यक्तियों के साथ क्या कर सकता है, संविदात्मक संबंध को बना सकता है, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन को रख सकता है। फीचर्स ऑफ एजेंसी, द फीचर ऑफ एजेंसी आर लेड डाउन इन सेक्शन 183 ऑफ द एक्ट। प्रिंसिपल शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, agent may be competent to contract 184, consideration not required for formation of agency section 185. Competency of principal, any person who is a major and sound mind can appoint an agent. Thus for being a principal, a person should be competent to contract. Agency being a contract of employment to bring the principal into legal relation with a third party. The first condition is that the principal should be competent to contract. Unless an alternate principal is competent to contract, any act done by agent will be void, and furthermore the appointment of an agent will itself be void. देखिए, अभिकर्ता कौन नियोजित कर सकता है, तो वह व्यक्ति जो विधि के अनुसार है, साउंड माइंड है, जिस 18 साल का हो चुका है, एजेंट अपॉइंट कर सकता है। Competence of agent, any person is competent to be appointed as agent. All person including infant and other person either with limited or no capacity to contract or competent to act as agent so as not to be responsible to their principal but to bind them. However, a minor should have sufficient understanding to consent to agency and to do the act required. Ordinarily, an agent incur no personal liability while contracting for his principals, and therefore it is not necessary that he should be competent to contract. A person may contract through a minor agent, but minor will not be responsible to the principal. देखिए, कॉम्पिटेंसी ऑफ एजेंसी, अभिकर्ता कौन हो सकता है, जहाँ तक प्रिंसिपल और मालिक के बीच का संबंध है, कोई भी व्यक्ति एजेंट हो सकता है, किंतु कोई भी व्यक्ति जो साउंड माइंड हो और माइनर ना हो के मेजर हो, एजेंट अपॉइंट हो सकता है। अब वो यहाँ पर जो बातें सेक्शंस में लिखी गई उनको पूरा करना ज़रूरी है, जो कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए वो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ाया जा चुका है। कंसिडरेशन is not necessary, although as a general rules all contract require consideration as their basic, but a contract of agency does not require any consideration. Generally an agent is remunerated by way of commission for service rendered, but no consideration is immediately necessary as the third एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। प्रतिफल आवश्यक नहीं। देखिए, एजेंसी को बनाने के लिए कोई कंसिडरेशन आवश्यक नहीं है। जो एजेंसी है वो कॉन्ट्रैक्ट द्वारा एस्टेब्लिशमेंट होती है और इसके जो मालिक होते हैं उसके बिहाफ पर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसलिए मालिक का जो होता है कॉन्ट्रैक्ट करने में वो कैपेबल होना चाहिए। सेक्शन 183 में स्पष्ट रूप से बता दिया है कि कोई व्यक्ति जो साउंड माइंड है, मेजर है, वही एजेंट अपॉइंट कर सकता है, कोई एक माइनर एजेंट अपॉइंट नहीं कर पाएगा। अब आगे देखें, एजेंसी एंड अदर रिलेशनशिप, एजेंसी एंड मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। Though an agent occupy a position which in many respects is similar to that of servant but it is not to, so actually the basic difference lies in the authority enjoyed by an agent to bind the principal. देखिए, यहाँ पर एजेंट में और आपके सर्वेंट में बहुत अंतर होता है। एजेंट जो होता है, आप कह सकते हैं कि भाई एजेंट जो होता है कमीशन पे काम करता है, जबकि नौकर जो होता है वो जो नौकर जो होता है वो अपने मालिक जो भी उसको काम देता है वो वही करता है। दोनों की सैलरी में भी अंतर होता है, नौकर को मजदूरी मिलती है, सैलरी मिलती है, और एजेंट को दलाली मिलती है, कमीशन मिलता है। नौकर जो होता है वो केवल एक ही मालिक की, प्रिंसिपल की नौकरी करता है, लेकिन एक जो एजेंट होता है वो कई मालिकों के काम कर सकता है। यहाँ पे ये जो अंतर बताया गया, ये किस केस में बताया गया, लक्ष्मी नारायण राम गोपाल सन्स वर्सेस हैदराबाद गवर्नमेंट में बताया गया कि एजेंट और नौकर में अंतर होता है। यहाँ पे कितने अंतर बताए गए वो आपको पढ़ के मैं बता रही हूँ। द कोर्ट स्टेटेड द डिफरेंस, एन एजेंट हैज़ द अथॉरिटी टू एक्ट ऑन बिहाफ an agent has authority to act on behalf of his principal and to create contractual relation between the principal and the third party. This kind of power is not generally enjoyed by a servant. A principal has the right to direct when the agent has to do so, but a master has the right to say how it is to be done. A servant acts under the direct control and supervision of his master and is bound to conform to all reasonable order given to him in the course of his work. But agent, though bound to exercise his authority in accordance with all lawful instruction, is not subject in exercise to the direct control or supervision of the principal. The mode of remuneration is generally different. A servant is paid by way of salary or wages, and an agent receives commission for the work done. A master is liable for the servant wrong if occur in the course of employment. A principal liable for his agent wrong done with the scope of authority.
इस केस में दोनों में अंतर बताया गया कि जो एजेंट है वो मालिक के बिहाफ पर काम करता है, थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन करता है। ऐसी रिलेशन किसी नौकर के पास नहीं होती है। मालिक को अधिकार होता है कि वो एजेंट को बताए उसे क्या करना है क्या नहीं, लेकिन एक नौकर को कोई अधिकार नहीं होता है। नौकर किस प्रकार काम करेगा, नौकर मालिक के कंट्रोल में काम करता है और मालिक के ऑर्डर से बाइंड होता है। और एजेंट मालिक के ऑर्डर को तो मानता है लेकिन वो उसके कंट्रोल में काम नहीं करता है। वेतन में तो दोनों की डिफरेंस सही है, नौकर को मजदूरी मिलती है और जो एजेंट होता है उसको कमीशन मिलता है। यहाँ पर नौकर केवल एक उनके लिए काम करेगा, एजेंट कई मालिकों के लिए काम करेगा। अब आते हैं एजेंसी एंड बेलमेंट। इन द रिलेशनशिप ऑफ बोथ एजेंसी एंड बेलमेंट देयर माइट बी इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड दस ए सर्टेन टाइम इन टू रिलेशन बिटवीन में रीजनेबल ईच अदर में बी सीम्स टू ओवरलैप। देर आर टू बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रिलेशनशिप। भाई एजेंसी और बेलमेंट में अंतर होता है। एजेंसी में जो एजेंट होता है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम करता है और बेलमेंट में बेलर बेली क्या होता है, बेली का किसके लिए काम कर रहा है, बेलर के लिए काम कर रहा है। यहाँ पर देखा जाए कमीशन के लिए काम करता है, वहाँ जो उसको काम वर्क सौंपा जाता है वो उसके लिए करता है। राइट ऑफ एजेंट, राइट टू रेमुनेशन सेक्शन 210, completion of task, retaining money received, remuneration only for the service directly accomplished by agent, effort of misconduct on right of remuneration, right of retainer, right lien, right to indemnity, right to compensation, right to account. The following are something important right of agent: right to remunerate section 219, section 219, right to retainer, right to retainer section 227, right of lien 221, right to indemnity 222, 223 और राइट टू कंपनसेट सेक्शन 225। तो यहाँ पर राइट टू अकाउंट, राइट टू अकाउंट्स। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि कौन कौन से एजेंट के राइट्स होते हैं। देखिए एजेंट के कौन कौन से राइट्स होते हैं, ये भी आपको हम सेक्शंस लगातार बताने जा रहे हैं कि अब आप देखेंगे कौन कौन से राइट्स होते हैं। सबसे पहले राइट टू रेमुनेशन। एन एजेंट इज इंटाइटल्ड, agent is entitled to remunerate at the term any condition agreed between the him and the principal even where though remuneration is agreed upon the entitled to reason। अब देखिए सबसे पहले वो क्या है, सेक्शन 219 बताता है कि यहाँ पर उसको सैलरी पाने का अधिकार है। किसी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अभाव में अगर कोई एजेंट को क्या करेगा, अगर अब तक काम पूरा नहीं होता है तब तक वो सैलरी नहीं मिलती, लेकिन जैसे ही काम पूरा हो जाएगा वो सैलरी के लिए इंटाइटल्ड हो जाएगा। कंप्लीशन ऑफ टास्क, जैसे ही काम पूरा कर ले वो क्या करे, वो टास्क पूरा कर ले तुरंत वो सैलरी पाएगा। अगर कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है प्रिंसिपल एजेंट के बीच में तब भी काम पूरा होने के बाद वो क्या कर सकता है, सैलरी की डिमांड कर सकता है। रिटेन मनी रिसीव्ड, अगर although an agent is not entitled to remuneration till the completion of task but he may retain money received by him or accounts of goods sold although the whole of the goods consigned to him for sale may not have been sold or his may sale not be actually complete। देखिए जब तक वो चीज़ों को बेच दे, उसको बेचने के बाद उसको अगर पैसा नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं मिली, तो चीज़ों को दूसरी चीज़ों को क्या कर सकता है, रोक सकता है। वो दूसरी चीज़ों को रोक सकता है। मनी को जब जैसे ही मनी मिलेगी उसको चीज़ों को वापस करना पड़ेगा प्रिंसिपल को। रेमुनेशन ओनली फॉर द सर्विस डायरेक्टली अकम्प्लिश्ड बाय एजेंट वेयर द एजेंट सर्विस आर ओनली रिमोटली contact with the transaction his remuneration is not earned, thus to be entitled to remuneration for a particular task it must have been accomplished due to the directly result of his service। An agent was appointed to sell a house and held an auction but failed to find a purchaser। One of the person attending the auction obtained from him the address of the principal and purchased the house from him without intervention of the agent, but it was held that the transaction was a result of the agent of efforts entitled him to his commission। देखिए वो डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, जैसे ही वो काम पूरा कर लेगा एजेंट सैलरी पाने के लिए ऑथराइज हो जाएगा। और अगर वो कोई मिसकंडक्ट कर रहा है उसका क्या होगा, इफेक्ट ऑफ मिसकंडक्ट ऑन राइट ऑफ रेमुनेशन। एजेंट टू लॉस हिज राइट टू रेमुनेशन वेयर ही हैज मिसकंडक्टेड हिमसेल्फ वेयर द टास्क असाइंड टू हिम इज डिवाइजेबल ही इज नॉट इंटाइटल्ड टू एनी रेमुनेशन only for the part which he has misconduct। Not only he is not entitled to remuneration in case of misconduct but the principal is entitled to recover compensate for any loss caused by the misconduct where a employee to B to recover 1000 rupees for C and though B is misconduct the money is not recovered, B is entitled to no remuneration for his service and must making good the loss। देखिए
अगर कोई एजेंट क्या करता है, मिसकंडक्ट करता है, कोई अपने काम के दौरान दुराचरण करता है जिसके कारण उसके मालिक को नुकसान हो, तो मालिक उसको रेमुनेशन नहीं देगा बल्कि मालिक उससे कंपनसेशन वसूल कर सकता है। अगर ए ने एम्प्लॉय के रूप में बी को रखा है और वहाँ पे उस बी के कारण, एम्प्लॉय के कारण, मिसकंडक्ट के कारण उस नुकसान होता है और उसी को नुकसान को पूरा करता है, तो ए क्या करेगा, उस नुकसान को बी से पूरा करेगा। वो किसी कोई भी रेमुनेशन नहीं देगा बल्कि अपने कंपनसेशन को पूरा करेगा। Right of retainer, although an agent is under a duty to remit all the sum received on behalf of the principal, but he has the right to retain his principal money until his claim, if any, respect of any his remuneration or advance made or expenses incurred in conducting the business of agency are paid. The right can be exercised or any sum received on account of the principal in the business of the agency. He can retain only such money as in possession. He is not entitled lien, that is the right to have his claim satisfied in preference to other creditor out of the principal money not in the possession. भाई वो चीज़ों को तब तक कब्जे में रख सकता है जब तक कि उससे उसका पैसा ना मिल जाए। अगर उसको उसकी कमीशन नहीं मिल रहा है तो वो चीज़ों को रोक लेगा और चीज़ों को तब तक नहीं देगा जब तक कि उसको पैसा रिसीव ना करा दिया जाए। यहाँ पर लीन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को रोके रखना, कब्जा बनाए रखना, धाराधिकार करना। राइट ऑफ लीन भी आगे बता रहे हैं, 221 में इसको अलग से दिया गया है। An agent is entitled to retain the property of the principal received by him till he is paid. The agent lien is subject to a contract to the contrary and therefore does not exist where the agent has been his agreement with the principal excluded. For the exercise of this right of lien, the agent should be lawfully entitled to receive from the principal of sum of money by the way of commission and of disturbance or made by service rendered to the proper execution of the business of agency. The property over which with the lien is to be exercised should be belong to the principal and the agent should have received in the capacity and during the course of the ordinary duties an agent where possession of the property is obtained without the principal authority or by fraud or misrepresentation, there is no lien. The property is considered to be sufficiency in the possession of the agent where he has been dealing with it. The agent has only a particular lien and not a general lien, while in case of general lien a person retain any property in his possession, a particular lien attached only to that specific subject matter in respect of which the charges are due and no other property can be retained. तो यहाँ पर वो तब तक राइट ऑफ लीन का मतलब होता है कि धन रोकने के अधिकार के अतिरिक्त एजेंट को राइट है कि जब तक उसे सैलरी और अदर एक्सपेंसेस ना मिल जाए वो मालिक की कोई भी प्रॉपर्टी, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, गुड्स, पेपर सभी को क्या कर सकता है, रोक सकता है। यहाँ पर इस जो राइट की शर्तें को लिए कौन कौन सी शर्तें पूरी होनी चाहिए कि भाई एजेंट को एजेंसी का कारोबार उचित ढंग से करते हुए मालिक से सेवाओं और खर्चों पाने के लिए अपना अधिकार होता है। जिस प्रॉपर्टी पर वो लीन रखता है वो मालिक की हो और एजेंट के पास उसके जनरल बिजनेस के ट्रांजेक्शन में आई हो। एजेंट केवल स्पेसिफिक लीन भी रख सकता है और केवल उसी संपत्ति को रोक सकता है जिसके बदले में उसे कमीशन प्राप्त करना है, वो किसी और प्रॉपर्टी को नहीं रोक पाएगा। Right to compensation, section 225. A principal is liable to compensate an agent for injury caused by the principal's own neglect. Thus, every principal owes to his agent the duty of care not to expose to unreasonable risk. Where a employee B has a brick layer in building a house and puts up the scaffolding, the scaffolding is fully put up and B is a consequence hurt, a must make compensate to B. क्षतिपूर्ति का अधिकार, अगर कोई से क्या करता है कि भाई मालिक के वजह से कोई से क्षतिपूर्ति होती है, लॉस होता है उसकी उपेक्षा की वजह से, तो एजेंट क्या कर सकता है, कंपनसेशन को ले सकता है। भाई जैसे मालिक ने कहा कि भाई इस मकान को बनाइए और पता चला वो मकान जहाँ बना रहा है वो उसका छज्जा ही गिर जाता है, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, अपने मालिक से कंपनसेशन ले लेगा। Right to account, although the act does not provide any specific provision for the account to be demanded by the agent for the principal, but this right has been recognized by the court in the case where the remuneration and counter claim of the agent was under issues. देखिए यहाँ पर अकाउंट के लिए कोई एक्ट में तो कुछ बात नहीं बताई गई, लेकिन कोर्ट में बहुत सारे केस को द्वारा बताया गया है कि वो क्या है, इसको कि वो अकाउंट्स को बनाए रखता है, मेंटेन रखता है। जब उससे प्रिंसिपल को डिमांड करता है तो वो उनके क्या कर सकता है, शो कर सकता है। तो ये आपने देखा कि ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई पार्ट्स में आता है, मैंने भी इसको क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में आपकी सुविधा के लिए बांटा हुआ है। तो पहले पार्ट में जो क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा, जैसे क्रिएशन ऑफ एजेंसी, तो आप 3 चीज़ें याद रखेंगे, एक्सप्रेस एजेंसी, इम्प्लाइड एजेंसी और एजेंसी बाय नेसेसिटी। तो ये 3 चीज़ें याद रखेंगे। डिफरेंट काइंड ऑफ एजेंट, ऑक्शनर, फैक्टर, ब्रोकर, स्टेट एजेंट, डेल क्रेडिटर एजेंट। मान लीजिए शॉर्ट नोट आ जाए केवल डेल क्रेडिटर एजेंट, तो आप क्या करेंगे, पहले नाम बता देंगे एजेंटों के और फिर जो शॉर्ट नोट आपसे पूछ रहा है उसको आप एक्सप्लेन कर देंगे। एलिमेंट्स ऑफ एजेंसी आ जाए तो आप क्या करेंगे, पहले बताएंगे फीचर्स ऑफ एजेंसी, कॉम्पिटेंसी ऑफ प्रिंसिपल, कॉम्पिटेंसी ऑफ एजेंट, कंसिडरेशन एजेंसी एंड अदर रिलेशनशिप, केस बताएंगे एजेंसी और बेलमेंट।
तो ये आप पूरा डिस्क्राइब कर देंगे। और फिर आ जाए फोर्थ में राइट ऑफ एजेंट। तो राइट ऑफ एजेंट में राइट टू रेमुनेशन, कंप्लीशन ऑफ टास्क, डिटेनिंग मनी रिसीव, रेमुनेशन ओनली फॉर सर्विस डायरेक्टली अकम्प्लिस्ड बाय एजेंट, इफेक्ट ऑफ मिसकंडक्ट ऑन राइट टू रेमुनेशन, राइट ऑफ रिटेनर। मान लीजिए शॉर्ट नोट में आ जाए राइट टू लीन, तो आप क्या करेंगे, पहले सारे राइट्स बता देंगे, जिसको पूछेगा उसको आप क्या एक्सप्लेन कर देंगे। राइट टू कंपनसेशन, राइट टू इंडेमनिफाई, राइट टू अकाउंट्स। तो ये एक क्वेश्चन को आप देखेंगे कि क्वेश्चन को यहाँ पर 4 स्टेप्स में बांटा गया है। ये क्वेश्चन 4 स्टेप्स में है और चारों स्टेप्स आपको अलग अलग याद करने हैं। इसका मतलब एक लॉन्ग में आप 4 क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। 4 लॉन्ग हो गए और 4 से ज़्यादा नहीं, कम से कम 7 से 8 शॉर्ट नोट आ गए। तो आप एक लॉन्ग तैयार करेंगे तो सारे लॉन्ग आपके इसमें तैयार हो जाएंगे और शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक पे फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।